پاکستان رینجر سندھ کی پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں اندرون سندھ ڈیرہ موڑ چیک پوسٹ کشمور پر کارروائیاں وافر مقدار میں ایرانی ڈیزل پیٹرول انجن آئل اسمگلر کرنے کی کوشش ناکام بنا دی 3 ملزم گرفتار 5 ٹرک اور 1 مزدہ قبضے میں لے لیا گیا موروں میں شوہر نے فائرنگ کر کے 8 بچوں کی ماں اور پولیس اہلکار کو قتل کر دیا واقعہ محلہ نانگاہ میں پیش آیا اہلکار گلشیر ہسپتال میں چل بسا ملزم غلام عباس نانگا کو پولیس نے گرفتار کر لیا قتل کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا الہ آباد میں امن و امان کی صورتحال انتہائی تشویشناک 2 ماہ میں ڈکیتی کی درجنوں وارداتیں ڈاکوؤں نے مزاحمت پر نوجوان کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا کوٹ میواتی کی رہائشی نوجوان علی سے 5,60,000 چھین کر فرار زخمی نوجوان کو لاہور جنرل ہسپتال ریفر کر دیا گیا شہریوں کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب سے فوری نوٹس دے کر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنا کر شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے شیخوپورہ میں گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ریفلنگ کرنے والوں کو لگام ڈالنے میں پولیس ناکام سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ ادارے ناکام ہیں نواحی علاقے ڈیرہ عبدالرحمان ورک میں غیر قانونی گیس ریفلنگ کے دوران سلنڈر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا تاندریاوالا میں تھانہ سٹی کے علاقے میں ڈکیتی وارداتیں بے قابو شخص 465 گاؤں پے میں ڈاکوؤں نے دوران ڈکیتی فائرنگ کر کے شخص کو قتل کر دیا مقتول کی شناخت اللہ دیدہ کے نام سے ہوئی ڈاکوؤں نے 2.5 لاکھ نقدی 2 تولے زیور موٹر سائیکل اور موبائل فون لے کر علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس ڈکیتی وارداتوں پر قابو پانے میں ناکام ہے آر پی او سی پی او فیصل آباد تاندریاوالا کے عوام پر رحم کریں اوسطا محمد میں ہندو تاجر کے گھر بیٹری پھٹنے سے دھماکہ خاتون سمیت 3 افراد شدید زخمی واقعہ افغان گلی میں تاجر سنتوش کمار کے گھر پیش آیا زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا شیلا کماری کو تشویشناک حالت میں کراچی ریفر کر دیا گیا السلام علیکم کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شیخوپورہ میں ڈیرہ عبدالرحمان ورک کے ساتھ غیر قانونی گیس ریفلنگ کے دوران سلنڈر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا حادثے میں 6 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے 3 جھلسنے والوں کو مقامی افراد نے فرسٹ ایڈ فراہم کی اور 3 شدید زخمیوں کو ادریس وقاص اور حامد کو ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے فوراً رسپانس کر کے ہسپتال منتقل کر دیا آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ شیخوپورہ میں ڈیرہ عبدالرحمان ورک کے ساتھ غیر قانونی گیس ریفلنگ کے دوران سلنڈر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا حادثے میں 6 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے 3 جھلسنے والوں کو مقامی افراد نے فرسٹ ایڈ فراہم کی اور 3 شدید زخمیوں ادریس وقاص اور حامد کو ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں نے فوراً رسپانس کر کے ہسپتال منتقل کر دیا ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد اکرم اویسی کی زیر نگرانی رانا محمد سرور نے گورنمنٹ ہائی اسکول چوبارہ میں 1 روزہ لائف سیور ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا اسی پر رپورٹ کریں گے عمیر عطا چویا جی بہت شکریہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر سجاد احمد ملک کی ہدایت کے مطابق اور ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر محمد اکرم اویسی کی زیر نگرانی رانا محمد سرور نے گورنمنٹ بوائز اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چوبارہ میں ریسکیو وینٹیلیٹرز کے لیے 1 روزہ پاکستان لائف سیور پروگرام ٹریننگ کا انعقاد کیا جس میں ابتدائی طبی امداد
मरहम पट्टी मसनूई तरीके से दिल और सांस की बहाली बहते हुए खून को रोकने के मुतल्लिक तफसीली तौर पर बताया। इसका अमली मुजाहरा भी करवाया गया। मजीद तमाम शरका को PLSP ऐप और RCC ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया गया और ऑनलाइन प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी करवाए गए। इस ट्रेनिंग का मकसद तमाम शरका को इमरजेंसी हैंडलिंग के मुतल्लिक आगाही देना था और फास्ट एड वीक के हवाले से भी ब्रीफिंग देना था ताकि दौरान इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 के पहुंचने तक वहां पर मौजूद लोकल कम्युनिटी जाए हादसा पर मौजूद जख्मियों की फौरी तौर पर मदद कर सके और कीमती इंसानी जानों को बर वक्त बचाकर महफूज मुआशरे का क्याम अमल में लाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ उमैर अता, कोहिनूर। खबर शामिल करें फतेह जंग से, जहां पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी है। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में कामरान और हमायूं बशीर शामिल हैं। कब्जे से 8 मोटरसाइकिल और एक रिक्शा बरामद हुआ। DPO अटक का कहना था कि पुलिस किसी भी गैंग को कानून की मजबूत गिरफ्त में लाने की भरपूर सलाहियत रखती है। आपको बताते चलें कि फतेह जंग पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी है। 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में कामरान और हमायूं बशीर शामिल हैं। तांदियावाला में थाना सिटी के इलाके में डकैती वारदातें बेकाबू शख्स 425 काफे में डाकुओं ने दौरान डकैती फायरिंग करके शख्स को कत्ल कर दिया। डाकू हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मकतूल की शिनाख्त अलादिता के नाम से हुई है। डाकुओं ने 2.5 लाख नकदी, 2 तोले जेवर, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लिया। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस डकैती वारदातों पर काबू पाने में नाकाम है। RPO CPO फैसलाबाद तांदियावाला के अवाम पर रहम करें और पुलिस अफसरान को मुतहरिक करें। नाज़रीन, खबर शामिल करें कोट छुट्टा से, जहां मैपको डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 100 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मजीद जानते हैं नजीर अंजुम अहमदानी से। जी नजीर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? मैपको डिवीजन कोटछुटा में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक्सीएन मैपको अल्लाह वरियो की हिदायत पर थाना कोटछुटा में 100 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात इंदराज कर लिए गए हैं। इनकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं। एक्सीएन मैपको कोटछुटा अल्लाह वरियो ने कहा कि एग्जेक्टिव मैपको की खसूसी हिदायत पर बिला इम्तियाज चोरी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। बिजली चोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात इंदराज किए जा रहे हैं। हर सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं जो दिन रात मसरूफ अमल हैं। मजीद उन्होंने कहा कि बिलों की अदम अदायगी की सूरत में कनेक्शन मुनक़ते कर दिए जाएंगे। सार्फिन भी बिजली चोरों की निशानदही के लिए मैपको के साथ तामुन करें। इतला दहिंदा का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ नजीर अंजुम। नाज़रीन, आपको बताएं कि अमन अमान के क़याम, जराइम पर काबू पाने और क्राइम चार्ट का जायजा लेने की खातिर SSP ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब अब्बासी की ज़ेर सदारत डिविजनल पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। SP वर्सिक डिवीजन के दफ्तर में होने वाले मीटिंग में SP वर्सिक मोहम्मद अरशद खान, SDOs, SHOs, चौकी इंचार्ज और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। पुलिस की समाज दुश्मन अनासर, संगीन जराइम में मुलविस गैंग्स के खिलाफ नई हिकमत अमली के तहत होने वाली कार्रवाइयां, मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। SSP ऑपरेशन ने कहा कि सरकारी अमूर की इंजाम दही अपना फर्ज समझे। इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्च ऑपरेशन, सरप्राइज नाकाबंदियां और पुलिस गश्त में इजाफे करके जराइम का कला कमा करें। हाल ही में जेलों से रिहा होने वाले आदि जराइम पेशे के साथ साथ उनके साथ करीबी ताल्लुक रखने वाले अफराद की भी कड़ी निगरानी का अमल जारी रखें। SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने कहा कि मनशियात के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद तेज और मौसर बनाने की खातिर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के तहत नवाही और मुतसिल इलाकों में कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि औस्ता मोहम्मद में हिंदू ताजिर के घर बैटरी फटने से धमाका हुआ। खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़या अफगान गली में ताजिर संतोष कुमार के घर पेश आया। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शैला कुमारी को तशवीशनाक हालत में कराची रेफर कर दिया गया।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की से मुतालिक इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी RTA कामरान अकबर ने कमेटी की तश्कील दी। डिप्टी कमिश्नर ज़िशान शबीर राना ने कहा कि जिले में हादसात की रोकथाम और इस ज़मन में कबल अज़ीं ही काम शुरू कर दिया जाता है, लिहाजा चूँकि हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हिदायत वसूल हो गई हैं, इसलिए हुकूमती हिदायत पर पूरी तरह अमल दरामद करवाया जाएगा। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब मोहम्मद एजाज मलिक, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राना मोहम्मद अकबर, DHO डॉक्टर गुलजार यूसुफ राव, DSP पंजाब हाईवेज पुलिस राना गुलाम मुश्तबा शरीक थे। DPO सवात के अहकामात के मुताबिक थाना कबल पुलिस की मुनशियात के खिलाफ जारी मुहिम में भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। मुतादिद मुनशियात फरोशों के कब्जे से 5 किलो चर्स, 240 लीटर शराब और 3 अदद पिस्तौल बरामद हुआ। कार्रवाई SHO कबल रहीम खान और इंचार्ज चौकी अली ग्रामा मोहम्मद आलम खान ने की। सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन मुनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां करते हुए मुलजिम फरमान के कब्जे से 5 किलो 214 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि माह रबीउल अव्वल की आमद है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए टाउन कमेटी मटियारी का इजलास हुआ। चेयरमैन टाउन कमेटी मटियारी सैयद हसन मुर्तजा शाह ने इजलास की सदारत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली फैजान। माह रब्बिल अव्वल की आमद के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने के लिए टाउन कमेटी मटियारी का इजलास चेयरमैन टाउन कमेटी मटियारी सैयद हसन मुर्तजा शाह जामोद की ज़ेर सदारत में हुआ। इजलास में टाउन कमेटी के काउंसलरों, इंतजामी अफसरान, उलमा इकराम, सिक्योरिटी एहलकार, महकमा सेहत और हेस्को के नुमाइंदगान शरीक हुए। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन टाउन कमेटी मटियारी सैयद हसन मुर्तजा शाह जामोद का कहना था कि रब्बिल अव्वल का मुबारक माह आ रहा है। माह रब्बिल अव्वल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम होते हैं, मिलाद की रैलियां निकलती हैं। हमारे तमाम मजहब त्यौहार एक जैसे हैं। हम तमाम फ़िक़्ह कुरान की इज़्ज़त करते हैं, इसलिए इंशाअल्लाह रब्बिल अव्वल में भी हमारी तरफ से मुकम्मल इंतज़ामात की। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोरो में शोहर ने फायरिंग करके 8 बच्चों की मां और पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। वाकया मोहल्ला लांघा में पेश आया। एहलकार गुलशेर अस्पताल में चल बसा। मुलजिम गुलाम अब्बास लांघा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर है इस हवाले से कि मोरो में शोहर ने फायरिंग करके 8 बच्चों की मां और पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। वाकया मोहल्ला लांगा में पेश आया। एहलकार गुलशेर अस्पताल में चल बसा। मुलजिम गुलाम अब्बास लांगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर मॉडल टाउन से कमर्शियल एरिया था सिटी होटल चौक तक अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हुए। सदर चौधरी लुकमान, सीनियर नायब सदर जावेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी मियाजमल और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फयाज हुसैन बलोच बिला मुकाबला मुंतखब हुए। काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब 9 मुंतखब ओहदेदारों का कहना था कि हम ताजिर बरादरी की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। सीनियर नायब सदर जावेद इकबाल और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फयाज हुसैन जान बलोच ने ताजिर बरादरी की हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी कराई। टोबा टेक्सिंग पंजाब फूड अथॉरिटी टोबा टेक्सिंग की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर माह अगस्त में भरपूर कार्रवाइयां डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में 1806 इंस्पेक्शन की गई और 1131 इस्लाहती नोटिस भी जारी किए गए। 4 यूनिट्स को सील करके प्रोडक्शन इस्लाह दर्ज, FIR तक बंद है और एक के खिलाफ कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 12,37,000 के भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। 2338 लीटर गैर मयारी और मिलावटी दूध और दीगर अशिया को भी तल्फ कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हाशिमाबाद पहुंच गए। सोमरो हाउस का दौरा किया। डॉक्टर अब्दुल वाहिद सोमरो से मामू मोहसिन सोमरो और भतीजे अहमद खान के इंतकाल पर इजहार तासीर किया। मरहूमीन की मगफिरत के लिए ख्वानी भी की।
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سرداری ہاشم آباد پہنچ گئے، سومرو ہاؤس کا دورہ کیا، ڈاکٹر عبدالواحد سومرو سے ماموں محسن سومرو اور بھتیجے احمد خان کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا، مرحومین کی مغفرت کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ گڑا موڑ کا ملتانی روڈ انسانی جانیں نکلنے لگا، خستہ حالی کا شکار ملتان روڈ غلام منڈی کے قریب سے انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آئے روز حادثات میں اضافہ ہونے لگا۔ مزید جانتے ہیں رانا اکرام شاہد کی اس رپورٹ میں۔ گڑا موڑ میں کلین اینڈ گرین پاکستان کے حکومتی دعوے ٹھوس، ملتان وہاڑی روڈ گڑا موڑ خستہ حالی کا شکار، بڑے بڑے گڑھے بن جانے سے حادثات معمول بن گئے۔ گڑھوں میں پانی جمع ہونے سے برساتی موسم میں ملتان روڈ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ٹوٹا ہوا ملتان وہاڑی روڈ نشتر میں ریفر کیے جانے والے ایمرجنسی مریضوں کی بھی جان لے جاتا ہے۔ بڑے بڑے گڑھے پانی سے بھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے ایمبولینسز یہاں پھنس کر رہ جاتی ہیں، دیر ہو جانے کے باعث ایمرجنسی کے مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ گڑا موڑ کے شہریوں اور جماعت اسلامی نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈویژنل اور ضلعی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملتان وہاڑی روڈ گڑا موڑ کو فوری طور کے اوپر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ ملتان روڈ غلہ منڈی کے نزدیک سے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ جماعت اسلامی شباب ملی یوتھ گڑا موڑ کی جانب سے ملتان روڈ پر شدید احتجاج کیا گیا۔ کمشنر ملتان اور ڈی سی وہاڑی سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ خستہ حالی کا شکار روڈ فوری طور کے اوپر تعمیر کیا جائے تاکہ قیمتی انسانی جانیں ضائع ہونے سے بچائے جا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا اکرام شاہد۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان رینجر سندھ کی پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں اندرون سندھ ڈیرہ موڑ چیک پوسٹ کشمور پر کارروائیاں جاری ہیں۔ وافر مقدار میں ایرانی ڈیزل پیٹرول انجن آئل برآمد ہوا، 3 ملزمان کو گرفتار کر کے 5 ٹرک اور 1 مزدہ قبضے میں لے لیا گیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے راجہ بلوچ۔ پاکستان رینجر سندھ کی جانب سے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں گڈاب، سائٹ سپر ہائی وے، گنا منڈی، نیو سبزی منڈی، سوراب گوٹ، انڈس چوک، نادرن بائی پاس، گلشن معمار اور نیٹی جیٹی پل کیماری میں متعدد کارروائیاں کی گئیں۔ دوسری جانب اندرون سندھ ڈیرہ موڑ چیک پوسٹ کشمور پر کارروائی کے دوران مجموعی طور پر 15,900 لیٹر ایرانی ڈیزل، 2,040 لیٹر پیٹرول، 360 لیٹر انجن آئل، 3 عدد پمپ، 12 عدد جنریٹر اور 1 عدد 30 بور پسٹل بغیر لائسنس برآمد کر لیا، جبکہ 3 ملزمان جاوید، سلیم اور سرور کو گرفتار کر کے 5 عدد ٹرک اور 1 مزدہ بیمہ ایرانی ڈیزل قبضے میں لے لیے گئے۔ ترجمان رینجر سندھ کے مطابق سندھ رینجرز اسمگلنگ کے مکمل خاتمے تک بلا امتیاز کارروائی جاری رکھے گی۔ گرفتار ملزمان کو بیمہ، ٹرک، مزدہ اور مسروقہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں الہ آباد سے، جہاں امن و امان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ 2 ماہ میں ڈکیتی کی درجنوں وارداتیں رپورٹ ہوئی، ڈاکوں نے مزاحمت پر نوجوان کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ کوٹ میواتی کے رہائشی نوجوان علی سے 5,60,000 چھین کر موقع سے فرار ہو گئے۔ مروٹ پہلا آل مروٹ اوپن کبڈی ٹورنامنٹ سردار گروپ کا فائنل کھیلا گیا۔ سردار گروپ نے شاندار کھیل پیش کر کے ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ مسلم گروپ کے بانی حاجی محمد حسین، محمد عمران، عرفان جاوید اور اطہر بشیر بادشاہ، جیو عرفان کیسر، ڈاکٹر الیاس حیدر، ملک محمد علی اور ٹائیگر ابو حمزہ کی شرکت ہوئی۔ سردار گروپ کی طرف سے سرپرست اعلیٰ علی سندھو، سہیب سندھو، آصف بھٹی، احسن صادق، دانیال رندھاوا، فیصل سندھو، ذیشان واہلا، اویس رندھاوا، وسیم سندھو، محمد وسیم، مبشر پہلوان، عثمان کنگ، تیمور مہر، دلشاد نے ٹورنامنٹ کو کامیاب کروایا۔ سردار گروپ کو ٹورنامنٹ کی کامیابی پر ڈھیروں مبارکباد دی گئی۔ مہمانان گرامی نے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔
नाज़रीन आपको बताएं कि थैलेसीमिया के मरीज 12 साल वसीम वसी की एक दिन के लिए DPO बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। लाहौर रोड का 12 वसीम बीमार होने की वजह से अपनी पढ़ाई जारी न रख सका। DPO अब्दुल्ला अहमद ने एक दिन के लिए DPO चिन्योट बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मरीज बच्चे की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे एक दिन के लिए DPO चिन्योट बना दिया गया। वसीम को DPO के बैच लगाए यूनिफॉर्म में DPO की गाड़ी में DPO ऑफिस तक लाया गया, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने उसका इस्तकबाल किया। मेरा बेटा मोहम्मद वसीम वसी जो बाई बर्थ हेमोफीलिया का पेशेंट है और इसने DPO साहब से ये ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मुझे एक दिन के लिए DPO बनाया जाए और DPO साहब ने मेहरबानी की, इसको एक दिन के लिए DPO बनाया। तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं जो मैं बयान करूँ, जो खुशी की हद है। स्पेशली जो इनिशिएटिव्स हैं IG पंजाब साहब के और RPO साहब के, उनके भी ही हैं कि स्पेशल बच्चे जो हैं और थैलेसीमिया हेमोफीलिया उनको हर किस्म की माली सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये ख्वाहिश तो DPO साहब चले उन्होंने शायद पहले ही पूरी की है और पंजाब में कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ। CEO अलीज़ेब फाउंडेशन फैसलाबाद से वसीम को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इसकी जो ख्वाहिश है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है। ये हीमोफीलिया का पेशेंट है और फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है, लेकिन बड़ा बाहिम्मत बच्चा है और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको बदनज़र से बचाए और बहुत ही अच्छा बच्चा है। और ये शुरू से ही मेरे पास जब से पैदा, ये कोई पैदाइशी बीमारी है हीमोफीलिया, तो जब से आ रहा है, लेकिन मैंने बड़े अरसे के बाद इसको देखा, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई, खुशी महसूस कर रहा हूँ उसको देख। जी, वसीम वसी हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है जो कि 8वीं क्लास का तालिब इल्म है और ये हेमोफीलिया के मर्ज़ में मुब्तला है और इस मेरे से मिलने के लिए आया तो मेरे से उसने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं यूनिफॉर्म पहनना चाहता हूँ पुलिस की और मैं एज अ पुलिस ऑफिसर काम करना चाहता हूँ। तो आज के दिन हमने इनवाइट किया कि आप पूरा दिन बतौर DPO गुजारेंगे और इस हवाले से जो पुलिस काम करती है उसको देखेंगे, विज़िट भी करवाएंगे हम इनको खिदमत मरकज़ का, अपने जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं IG पंजाब के। तो ये हमारा एक बेटर रिलेशन डेवलपमेंट और एक गुड इमेज ऑफ पुलिस के हवाले से बड़ा कदम है और वसीम बड़ा अच्छा फील कर रहा है और उसने ये कहा कि वो इस पुलिस की नौकरी को करीब से देखना चाहता है और आज के दिन वो ये पैगाम देना चाहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग उसके नर्व्स भी हैं और माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है और वो जितनी भी उसके साथ बीमारी या जो मसला है वो उसको अपने आड़े नहीं आने देगा और ज़िंदगी की दौड़ में बहुत तरक्की भी करेगा और कामयाबी का हासिल करके इंशाल्लाह वो एक वाकई एक पुलिस ऑफिसर बनेगा अपनी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं 8 क्लास का तालिब इल्म हूँ। मैं बीमार था इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक दिन का DPO बनूं, इसलिए IG पंजाब साहब और RPO फैसलाबाद और DPO अब्दुल्ला अहमद साहब चनियोड़ ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद और DSP के रात गए पानी शोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गैर कानूनी मोकाजात और सेर जमीन पाइप्स को खत्म करवा दिया गया। पानी चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से रात भर नहरों की चेकिंग के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई। वहीं दूसरी जानिब भुजरा शाह मुकीम में वापडा का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक्सीएन मोहम्मद जमाल ने टीम के हमरा सब्जी मंडी, भोकन, अटारी रोड, कलासदा सिंह झजपुर में कार्रवाइयां की गई। बड़े पैमाने पर डायरेक्ट कुंडियां लगाकर बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों की शनाख्त इरफान, इमरान अली, अमजद फरीद के नामों से हुई है। मुकदमा दर्ज करके ताहाल कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि हुजरा शाह मुकीम में वापडा का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एक्सीएन मोहम्मद जमाल ने टीम के हमरा सब्जी मंडी, भोकन, अटारी रोड, कलासदा सिंह झजपुरत में कार्रवाइयां की है। बड़े पैमाने पर डायरेक्ट कुंडियां लगाकर बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरी की शिनाख्त इरफान, इमरान अली, अमजद फरीद के नामों से हुई। मुकदमा दर्ज, ताहाल कोई गिरफ्तारी न हो सकी।
عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن کے دشمن ایک بار پھر سرگرم عمل ہو گئے ہیں، جبکہ سرحدات پر بھی ناخوشگوار واقعات خیبر پختونخوا کا امن اجاڑنے کی کوشش ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کہ لکی مروت میں جوڈیشل کمپلیکس میں چوری کی بڑی واردات ہوئی، چور ڈسٹرکٹ بار روم سے اے سی بیٹریاں اتار کر لے گئے، سخت سیکیورٹی اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی چوروں کو نہ روک سکے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا نوٹس ہے، انکوائری مقرر کر دی گئی ہے۔ صدر بار اکرام اللہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار چوری کی وارداتیں ہو چکی ہیں، ڈسٹرکٹ بار کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ وہیں دوسری جانب لکی مروت میں ہی شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کا احسن اقدام ہوا۔ علی شاہ مرحوم کے اصال ثواب کے لیے سینکڑوں یتیموں اور بے سہارا افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ راشن میں آٹا، چینی، گھی، دال، چائے کی پتی اور دیگر اشیاء شامل تھیں۔ اس حوالے سے لکی مروت کے پسماندہ علاقے سلیمان خیل مینشا کا اکرام اور مسکین صابر شاہ کی نگرانی میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں لکی مروت سے شریف اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ لکی مروت میں شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن نے علی شاہ مرحوم کے اصال ثواب کے لیے سینکڑوں یتیموں اور بے سہارا افراد میں راشن تقسیم کیا۔ اس حوالے سے لکی مروت کے پسماندہ علاقے سلیمان خیل میں ان کے فرزند شکیر اللہ اور بائی مسکین صابر شاہ کی نگرانی میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تحصیل میئر غزنی خیل ذیشان محمد خان، تحصیل میئر سرائے نورنگ حاجی عزیز اللہ خان، تحصیل میئر لکی مروت شفقت اللہ خان، مروت آزاد گروپ کے چیئرمین ملک نجیب اللہ خان، سابقہ ضلعی نائب ناظم عرب خان اور سماجی شخصیت زاہد کشمیروال سمیت کثیر تعداد میں علاقہ مشران نے شرکت کی۔ اس موقع پر شاہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے قائم مقام چیئرمین شکیر اللہ کا کہنا تھا کہ ہمارے والد نے دکھی انسانیت کی خدمت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو تاحیات جاری و ساری رکھیں گے، اور جس طرح وہ یتیموں اور بے سہاروں کا سہارا بنتے تھے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر یتیموں کی خدمت کریں گے۔ تقریب کے دوران مہمانوں نے علی شاہ مرحوم کی زندگی پر روشنی ڈالی اور فلاحی انسانیت کے لیے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر راشن وصول کرنے والے بہت زیادہ خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ علی شاہ مرحوم ہر ماہ ہمیں راشن دیتے تھے اور ہمارا سہارا بنے تھے۔ اس کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم ایک مرتبہ پھر سے بے سہارا ہو گئے، لیکن ان کے فرزند کی کوششوں سے ہمیں یقین ہو گیا کہ ان کی موجودگی میں ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خبر شامل کریں گے شانگلہ سے، جہاں ٹی ایچ پی ہسپتال کئی دہائیوں سے زوحالی کا شکار ہے۔ عمارت آثار قدیمہ کا نقشہ پیش کرنے لگی، ہسپتال میں سپیس کم ہونے کے باعث مریض خوار ہونے لگے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے غازی احمد۔ شاہراہ کراکرم کی پٹی پر شانگلہ اور کوہستان کے سنگم میں واقع تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بشام، شانگلہ سمیت کوہستان کے تینوں اضلاع کا انحصار اسی اسپتال پر ہے، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے زبوحالی کا شکار ہے۔ اسپتال کی بلڈنگ آثار قدیمہ کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ اسپتال میں اسپیس کم ہونے کے باعث مریض خوار ہونے لگے۔ میڈیکل سپرڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بشام ڈاکٹر منصور احمد کا کہنا ہے کہ اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر 500 سے زائد او پی ڈی ہوتی ہے۔ شاہراہ کراکرم کی پٹی پر واقع یہ اسپتال 24 گھنٹے ایمرجنسی میڈیکل سروس فراہم کرتا ہے۔ اکثر ہمیں تورغر کے مریض بھی ادھر آتے ہیں، تو یہ 4-5 ڈسٹرکٹ کے مریض ادھر ٹرین ہوتے ہیں اور کافی رش ہوتی ہے۔ اس میں ہماری او پی ڈی جو ہے وہ 400، 450، 500 تک ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد۔ دوسری جانب سابق تحریک انصاف کی حکومت نے 2019 میں اسپتال کی اپ گریڈیشن کی منظوری دیتے ہوئے نئی بلڈنگ پر تعمیراتی کام شروع کیا تھا۔
लेकिन 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी तामीराती काम इल्तिवा का शिकार है। 80 करोड़ रुपए के तखमीने लागत से बनने वाली अस्पताल की बिल्डिंग फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रही है। ये तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, काम रुका हुआ है, इसमें फंड नहीं है। हमारे जो है ठेकेदार वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने काम रोका हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 80-90 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। खैबर पख्तूनख्वा की साबिक तारीख इंसाफ की सूबाई हुकूमत सियासत और तालीम की इमरजेंसी के बुलंद व बाला दावे तो कर रही थी, लेकिन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बिशाम की बिल्डिंग 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद तामीर न होना और पुरानी बिल्डिंग में सहूलियात का फुकदान तब्दीली सरकार के लिए लम्हाई फिक्रिया है। कैमरा टीम के साथ गाजी अहमद बिशाम। नाज़रीन, आपको बताएं कि मखसूस सीट पर समारो टाउन कमेटी का मेंबर बनने वाले ख्वाजा सराफ फकीर कमरुन्निसा की कुनरी से लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। कोटरी में हेस्को हुकाम ने जाम शोरों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। दीगर इलाकों में 8 ट्रांसफार्मर्स और दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़िता कर दिए गए। गैर कानूनी कनेक्शन की तारों को जब्त करके नजर आतिश कर दिया गया। हेस्को टीम ने वाजिबात की अदम अदायगी पर सार्फिन को फौरी अदायगी के लिए किस्त करके भी दी थी। आईजे के पी अख्तर हयात खान का बनू का एक रोजा दौरा है। मॉडल पुलिस स्टेशन जानीखेल का इफ्तिताह कर दिया। आला पुलिस हुकाम के इजलास की सदारत की। आईजी ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर पुलिस लाइन बनू में कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम करने की अहकामात जारी किए हैं। बेहतरीन कारकर्दगी और इन ट्रेस मुकदमात को ट्रेस करके मुल्जिमात की गिरफ्तारी पर पुलिस एहलकारों में तारीफी असनाद की तकसीम की। मुरीदके में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। साबिक चेयरमैन मसालती कमेटी शेखुपुरा, साबिक नाजिम यूसी टाउन नदीम नवाज शीना के चावलों के शेलर से गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स लगाकर बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को ने थाना सिटी मुरीदके में मुकदमा दर्ज करवा दिया। एक्सीएन मुजम्मिल का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ मुतादिद मुकदमा दर्ज करवा कर लाखों के जुर्माने कर दिए हैं। खबर शामिल करें उस शरीफ से, जहां ताल्लुकात के शुबा पर अवाम ने अपनी अदालत लगा ली। मौसा बनवाला में शहरियों का नौजवान पर वहशियाना तशद्दुद, बाजू तोड़ दिए। तशद्दुद की फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हुई। फुटेज में देखा जा सकता है कि नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। सांसप्रीत, यूनिसेफ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से इंटरनेशनल लिटरेसी डे के मौका पर जामपुर में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 2 में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। डीईओ एलिमेंट्री बॉयज मोहम्मद शफीक साजिद, डिप्टी डीईओ एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर अमजद इस्लाम पताफी ने भी शिरकत की। खबर शामिल करें ओकाड़ा के नवाही इलाके सरकी मोहल्ला में, जहां चोर शहरी का मोटरसाइकिल ले उड़े। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज से हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि किस तरह 2 चोर शहरी के घर से मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं। बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार है। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वहीं दूसरी जानिब खानपुर में भी चोरी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। चोर थाना सिटी की हदूद बाईपास रोड से रात की तारीखी में हमसा आइजन ट्रेडर्स के ताले तोड़कर हजारों रुपए ले उड़े। चोर की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल होगी। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोरी करते हुए किस तरह से ताले तोड़े गए हैं। मुतासरा दुकानदार हमजा शकील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भी इसी रोड पर 2 दुकानों की चोरी हुई थी। पुलिस उस रवि का मुजाहरा कर रही है। खुजरा शाह मुकीम में मोटरसाइकिल को टक्कर से हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ बहक हो गया। शनाख्त अफजल भट्टी के नाम से हुई है। लेडी का ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया।
नाज़रीन, आपको बताएं कि वफाकी वजीर मजहबी अमूर मोहम्मद अनीक अहमद का जामिया नईमिया का दौरा है। ज़ेरे तालीम तलबा से मुलाकात की। अनीक अहमद ने लाइब्रेरी का भी दौरा किया। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड अल्लामा डॉक्टर नईमी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा कि तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला कल रोशन है, उसके समरात अवाम तक पहुँचने वाले हैं। वज़ीर आज़म बड़ी तवज्जो और विजन के साथ काम कर रहे हैं। कुरान पाक की तौहीन बर्दाश्त नहीं हो सकती। जो मुमकिन हो सकेगा वो करेंगे। परचम में सफेद हिस्से को शामिल किए बगैर हमारा परचम मुकम्मल नहीं होता। मौशी मसाइल है, इस कौम को आगे लेकर जाना है। हमारी मंजिल एक है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि वफाकी वजीर मजहबी अमूर मोहम्मद अनीक अहमद का जामिया नईमिया का दौरा है। ज़ेरे तालीम तलबा से मुलाकात की। अनीक अहमद ने लाइब्रेरी का भी दौरा किया। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड अल्लामा डॉक्टर नईमिया के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। दूसरी जानिब आलूदगी फैलाने वाले लाहौर शहर कौम और हमारे मुस्तकबिल के दुश्मन है। डीसी लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। एक माह के दौरान धुआं छोड़ती बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट्स बगैर रूट परमिट चलती 678 गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया गया। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि धुआं छोड़ने वाली 38 गाड़ियां बंद हैं। 4,73,000 के जुर्माने आयद किए गए। बगैर रूट परमिट 86 गाड़ियां बंद कर दी गई। 25 को 1,38,000 के जुर्माने किए गए। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट्स 249 गाड़ियों के चलान 4,42,000 के जुर्माने आयद किए गए। 149 LPG दुकानों के अलावा मजीद उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद सख्ती लानी जाएगी। ज़िला इंतजामिया लाहौर ने एंटी स्मोक और आलूदगी क्रैकडाउन की रिपोर्ट जारी कर दी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर में डेंगू के डंग में तेजी का सिलसिला जारी है। एक ही दिन के दौरान 44 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। इलामा इकबाल में 8, अजीज भट्टी टाउन 1, कैंट में 15 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। DGBD में 1, गुलबर्ग में 9 डेंगू केसेस, निश्तर जोन में 1, रावी 1, समनाबाद में 2 डेंगू केस रिपोर्ट हुए। डीसी लाहौर की हिदायत पर डेंगू कार्रवाइयों की फील्ड में मॉनिटरिंग जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट नबील मेमन में UC 61 अजीज भट्टी जोन में डेंगू केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। मुतासरा घर और इतराफ के 49 घरों में स्प्रे, 3 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड जैनब ताहिर का UC 119 इलामा इकबाल जोन में डेंगू टीमों का मुआयना किया। एक ही घर में 2 डेंगू मरीजों की अयादत की। DDHO को डेंगू सर्विलेंस बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल साहबजादा यूसुफ का निश्तर जोन UC 105 में डेंगू टीमों के काम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा का UC 66 में टीम नंबर 9 की कारकर्दगी का जायजा लिया। आउटडोर डेंगू टीमों को डेंगू सर्विलेंस मजीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी गई। SOPs के खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। जराइम पेशा नासिर अपना किबला दुरुस्त कर ले वरना उनका ठिकाना जेल होगा। DIG ऑपरेशन सईद अली नासिर रिजवी के हुक्म और SP सिविल लाइन हसन जावेद भट्टी की हिदायत पर SHO कला गुजर सिंह मोहम्मद यूनस भट्टी का नशइयों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 1 दर्जन से नौजवानों को गिरफ्तार करके बेहतर इलाज मुआवजे के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से बनाए गए फलाही सेंटर में दाखिल करवाया गया। नशइयों के इंकशाफ पर पुलिस के नशा फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। SHO कला गुजर सिंह यूनस भट्टी कहते हैं किसी को इलाके में इंसानी जान से खेलने की इजाजत हरगिज न दी जाए, जबकि जुर्म करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता खुद बनाएगी। CEO बाबर साहबदीन की हिदायत पर शहर भर में एंटी स्मोक मुहिम का आगाज कर दिया गया। लाहौर के 9 टाउन्स में आगाही वॉक्स का एहतमाम किया गया। कूड़े को आग लगाने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया। इन्फोर्समेंट टीमें शहर भर में मुतहरिक हो चुकी हैं। 80 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर स्क्रीनिंग एक्टिविटी मुकम्मल करके
हदायत जारी कर दी गई। बाबर साहब दिन का कहना है कि 980 किलोमीटर से लंबी सड़कों की रोजाना मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी। हॉटस्पॉट एरियाज की निगरानी मॉनिटरिंग रूम में डिजिटल एप्लीकेशन से की जाएगी। दाखिली खारजी रास्तों समेत हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स एरियाज में पानी का छिड़काव करके भी हिदायत कर दी गई। शहरी कूड़े को आग लगाने से इज्तनाब करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के फोकल पर्सन चौधरी मंसूर का लोधरा और कहरोड पक्का में सैलाब से मुतासरा देहात का दौरा है। मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल सुने। लोधरा में मुतासरा बस्ती आदम वाहन, मंशीवाला, लई वाहन और कहरोड पक्का में डेरा दिलावर, डेरा महरो, मोसा वगा मिल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गन्ना, मकई और गंदुम पैदा करने वाली सरखेज जमीनें तबाह हो चुकी हैं। मुतासरा इलाकों को अभी तक आफत ज़दा करार न देना लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में ज़राए मवासलात और बिजली का निज़ाम दुरुस्त करे। इस मौका पर पीपल्स पार्टी लोधरा के ज़िले सदर इमदादुल्ला अब्बासी और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सूबाई सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी की सरबराही में तमाम असलाह के सेक्रेटरीज की कारकर्दगी जांचने के हवाले से अहम इजलास हुआ। ऑनलाइन ऐप ज़ूम के जरिए तमाम रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास के मजीद अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। सूबाई सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी की सरबराही में अहम इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के सेक्रेटरीज की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। जूम ऑनलाइन ऐप के जरिए तमाम इजला के सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। इजलास में SPTA फैसल अब्बास, सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मांगट, DG इंडस्ट्रीज आयशा हमीद, सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफीक और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने कहा, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की फराहमी से मुतल्लक मैकेनिज्म को मजीद बेहतर बनाने के लिए सब अपना अपना किरदार अदा करें। मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बेहतरीन और मियारी सफरी सहूलियात की फराहमी के अमल को मुमकिन बनाया जा सके। इजलास में एक्सेल लोड मैनेजमेंट रजीम में नाज़रीन आपको बताएं कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज का अहसन इक़दाम है। 33 मुस्तहिक़ बच्चे हसूल तालीम के लिए स्कूल दाखिल हो गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ लाहौर समेत सूबा भर में कमजोर तबकों और मुस्तहिक़ शहरियों की मदद के लिए मसरूफ़ अमल है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ननकाना साहब माली मुश्किलात की वजह से तालीम से किनारा कशी होने वाले 33 बच्चों का सहारा बन गया। चाइल्ड लेबर का शिकार फीस अदायगी की सख्त न रखने वाले 33 बच्चों की तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका। मुकामी स्कूल यूनियन के ताउन से स्कॉलरशिप्स के तहत बच्चों में फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ननकाना साहब के इंचार्ज ASI नाजिम शाह के एजाज में तकरीब। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर और ASI नाजिम अब्बास की कारकर्दगी को बेहद सराहा। तकरीब में स्कूलों में दाखिल करवाए गए बच्चों और उनके वालिदैन की भी शिरकत हुई। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, बैग समेत तमाम सहूलियत फ्राहम की गई हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि समाजी मुश्किलात का शिकार शहरियों की मदद पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ का बुनियादी काम है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर ननकाना की कारकर्दगी तमाम अजला के लिए काबिल तकलीद है। नाज़रीन आपको बताएं कि नारंग मंडी में लेस्को वर्कर्स यूनियन के सीनियर वाइस चेयरमैन ताहिर इशफाक ओलख की जानिब से 9 मुंतखब ओहदेदारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी रहनुमाओं की शिरकत हुई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमली लेस्को वर्कर यूनियन के 9 मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में सीनियर वाइस चेयरमैन चौधरी ताहिर अशफाक औलख की जानिब से डेरा औलख पर अजीम शान पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसमें लेस्को रीजनल वाइस चेयरमैन सज्जाद अहमद पट्टी, चेयरमैन नॉर्थ नारंग मलिक मोहम्मद यासिन, चेयरमैन यूथ सैयद अदनान काजमी, चेयरमैन साउथ मलिक इफ्तिखार साजिद, जनरल सेक्रेटरी नईम कम्बो, जबकि डिवीजनल और सब डिवीजनल यूनियन ओहदेदारान और मुकामी स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर
मलक मोहम्मद यासिन को चेयरमैन, सैयद अदनान काजमी को यूथ चेयरमैन, चौधरी ताहिर अशफाक आवला को सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई और इनके हक में फलस शिगाफ नारे लगाए गए। नामुंतखब ओहदेदारान ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अपने कायदीन के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और अपने फ़राइज़ मुनसबी आसान तरीके से अदा करेंगे। मज़ीद जानते हैं नामुंतखब सीनियर ओहदेदारान का बयान। जी, मैं मलक यासिन साहब, सैयद अदनान काज़मी साहब, ताहिर औलख साहब और चाचा मकसूद साहब, अनवर मान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने नारंग में आज मुझे दावत दी। ऑल पाकिस्तान वालदा हाइड्रो सेंट्रल लेबर यूनियन के असर से नारंग नॉर्थ मलक मोहम्मद यासिन मुंतखब हुए हैं और मेरे अहदेदारान मेरे नाल में। खबर शामिल करें उकाड़ा से, जहां दी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मास्टर्स और तालिबे इल्मों का रेस्क्यू 1122 के सेंट्रल स्टेशन का मालूमाती दौरा है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आयशा ने मास्टर्स और तुलबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने मालूमाती दौरे के दौरान तुलबा को रेस्क्यू सेंट्रल स्टेशन का तफसीली मुआयना करवाया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मास्टर तुलबा ने रेस्क्यू 1122 काड़ा के सेंट्रल स्टेशन का मालूमाती दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर चौधरी जफर इकबाल और रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मैडम आयशा ने मास्टर तुलबा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने मालूमाती दौरा के दौरान तुलबा को रेस्क्यू सेंट्रल स्टेशन का तफसीली मुआयना करवाया। उन्होंने तुलबा को कंट्रोल रूम में फ़ोन कॉल के बाद की जाने वाली कार्रवाई के मुतल्लिक भी आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और उनकी टीम ने बच्चों को इमरजेंसी की सूरत में CPR सांस लेने की बहाली की तकनीक के मुतल्लिक आगाह किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बच्चों से CPR का अमली मुजाहरा भी करवाया गया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने बेहतरीन अमली मुजाहरा करने पर इदारा के तलबा की तारीफ की। बाद रेस्क्यू 1122 के मास्टर ट्रेनर्स ने तलबा को एम्बुलेंस में मौजूद आलात और उनके इस्तेमाल के बारे में आगाह किया। इलावाजी आग लगने की सूरत में फायर फाइटिंग के तरीक़ाकार और आग बुझाने के मुतल्लिक भी तुलबा को आगाह किया। तुलबा ने आग बुझाने का मुजाहरा भी किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने कहा कि मालूमाती दौरा में इदारा के तुलबा ने जिस अंदाज से CPR, फायर फाइटिंग और दीगर मालूमात हासिल की हैं और फौरी तौर पर इनका अमली मुजाहरा किया है, वो काबिल तहसीन। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।